Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACC tutor Manisha Gupta, and in today's video we are going to solve one more long question, and this is from the performance measurement and control topic. So this is for all the PM student, and question name is MOV, which has been asked in June 2015. Okay, so before we start this question, let's read the requirement. As you know, long question is for 20 marks. अब यहाँ पे दो requirement है, A and B. A में क्या पूछा गया है? Assuming that group's current policy could be changed, advise which using a suitable calculation the number of motor which division M should supply to division S. In order to maximize group profit, recommend the transfer price or prices at which these internal sales should take place. Note, all relevant working must be shown. सो अगर रिक्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे दो तीन चीज मेंशन किया है. फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. सेकेंड में हमको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मोटर दैट डिवीजन एम शुड ट्रांसफर टू डिवीजन एस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. एंड एट लास्ट हम लोग को एडवाइस भी रिकमेंड भी करना है कि क्या ट्रांसफर प्राइस पे ये सेल्स अकर होना चाहिए. Alright, so this is for the part A of the requirement. Now moving to the part B, the question says each of the MOV division is managed by a divisional manager who has a power to make all investment decision within the division. Alright, so they have their own decision making power regarding all those investment. The cost of capital for both division is 12%. Historically, the investment decision have been made by calculating the return on investment any opportunity. At present, return on investment of each division is 16%. So that means currently the decision whatever the decision related to the investment made by the each of these division are based on the ROI calculation. So if we talk about the current ROI of the each division, it's 16%. Okay, so अब इस केस में क्या होगा, कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर डिवीजन को वो प्रोजेक्ट इस 16% से हायर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, they will go ahead, otherwise they will reject those project. क्यों? क्योंकि अगर वो नया प्रोजेक्ट का हमारा आरओआई लोअर है, उसमें क्या होगा कि आपका जो करंट आरओआई है उसको डाइल्यूट करेगा, बिकॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग ऑन एन एवरेज. ठीक है, सो अगर वो लोअर होगा तो हमारा जो एग्जिस्टिंग आरओआई है उसको डाइल्यूट करेगा. अगर वो डाइल्यूट हुआ तो उनका परफॉर्मेंस और the bonus which was based on the performance could not be received by the division manager of the respective division. ठीक है, a newly manager who has recently been appointed in the division S has argued that using the RI to make the investment decision would result in the better goal congruence throughout the company. So obviously हमारा जो ROI है it will not support the goal congruence, but RI जो है ये हमको better goal congruence से support करता है. So each division is currently considering the following separate investments. So उन्होंने capital का requirement, sales, net profit margin, everything has been given. So based on this paragraph, there is three requirement. First is to calculate the ROI for the each of a division, which is quite very simple. And second में ROI calculate करना है for the both of the division S and M, and it's for the 4 marks. And third में हमको comment करना है taking into consideration the manager view about ROI. इसको भी डील करेंगे. सो इससे पहले हम लोग ये बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है टू सॉल्व द पार्ट ए. पार्ट ए में बेसिकली क्या कह रहा है कि हमको जो ग्रुप का करंट पॉलिसी है उसको ये एज्यूम करना है वो चेंज होगा. अगर चेंज हुआ ग्रुप का एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ऑब्वियसली ये टॉपिक हमारा ट्रांसफर प्राइस से पूछा गया, तो ग्रुप का जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है अगर वो वी विल एज्यूम वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग को ये चीज फिगर आउट करना पड़ेगा दोनों डिवीजन कितने कितने पे ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड लास्ट में हमको रिकमेंडेशन भी देना है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर करना ठीक होगा, एंड हमको प्राइस भी रिकमेंड करना है कि ये प्राइस पे बेस्ट होगा. Alright, so it's for 10 marks, not a joke, right? So let's read the background of for this to perform this calculation part.
So Moog company manufacture electronically mobility scooters. The company is split into two divisions, the scooter division S and the motor division M. Division M supply electronic motor to the both division S and the external customer. So basically M जो मोटर बनाता है वो डिवीजन S को भी भेजता है बिकॉज वो स्कूटर डिवीजन है तो वो मोटर यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा एज वेल एज ये बाहर भी बेच रहा है right. The two division runs as autonomously as possible subject to the group current policy that division M must make the internal sales first before selling outside the group and that selling division S must always buy its motor from division M. So basically हमारा जो ग्रुप का करंट पॉलिसी क्या है कि अगर M है M डिवीजन मोटर बना रहा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी डिवीजन S को देना पड़ेगा इंटरनल देना पड़ेगा rather than selling outside. और डिवीजन S के लिए क्या है कि उसको पहले अंदर से ही खरीदना पड़ेगा कुछ भी हो जाए उसको डिवीजन M से खरीदना पड़ेगा ठीक है. However, this company policy together with the transfer price with division M charges division S is currently under review. अब based on this policy जो transfer price charge हो रहा है वो भी रिव्यू में है मैनेजर के रिव्यू में है वो ठीक है कि नहीं क्या क्या. सो इस दोनों का डिवीजन का डिटेल दिया. डिवीजन एस की बात किया जाए डिवीजन एस बजट फॉर द कमिंग ईयर शोज दैट 35,000 इलेक्ट्रॉनिक मोटर विल बी नीडेड. सो डिवीजन एस को कितना मोटर चाहिए 35,000 और ये मोटर का प्राइस एक्सटर्नल सप्लायर कितने में पे कर रहा है एस को कितने में बेच रहा है 800 में ठीक है. सो अगर मैं बेस्ट सेलिंग प्राइस की बात करूं दैट इज द एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस विच इन आवर केस इज 800 बिकॉज मुझे बाहर 800 में मिल रहा है तो वो मैं चाहूंगी कि उससे कम हो या फिर उतना हो उससे ज्यादा आई विल नॉट बी रेडी टू पे क्योंकि बीइंग देखो ऐसा होता है ना जो हमारा बायर होता है ना बायर के लिए मिनिमम के लिए बार नहीं है वो क्या चाहेगा मुझे तो सामान फ्री में मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी. सो उनके लिए मिनिमम का बार नहीं है मिनिमम का बार सीधे 0 है बट यस उनके पास मैक्सिमम का बार है कि दैट इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता ठीक है. अगर सिमिलरली मैं सेलर की बात करूं सेलर के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम के लिए कोई बार नहीं है बिकॉज वो सेलर चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो बट यस मिनिमम का बार होता है कि अगर उससे नीचे मैं चार्ज करूंगा तो मैं लॉस में जाऊंगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक होगा. तो ये अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो वो किसके लिए सुटेबल है बायर के लिए. मिनिमम की बात की जाए किसके लिए सुटेबल है सेलर के लिए. ऑलराइट. सो अब डिवीजन एम की बात की जाए डिवीजन एम हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस टोटल 60,000 इलेक्ट्रॉनिक मोटर पर ईयर्स. डिटेल ऑफ डिवीजन एम बजट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर आर एज फॉलो. सो अब फोर्थ कमिंग ईयर का बजट क्या है कि वो कितने सेल करेंगे 60,000 60,000 एंड इसका सेलिंग प्राइस इज योर 850. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सटर्नल सेल्स ऑफ मोटर इज 770. मतलब ये इसका वेरिएबल कॉस्ट है इस मोटर को प्रिपेयर करने का. The variable cost per unit for motor sold to division S is 30 per unit lower than due to the cost of saving on distributing and packaging. अब ये क्या कह रहा है जैसे ये 770 है ना प्रिपेयर करने का अगर ये M बाहर बेच रहा है ना तो उसको 30 एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर हो रहा है क्यों फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पैकेजिंग पर्पस. बट अगर वो इंटरनली बेचेगा डिविजन S को बेचेगा तो ये कॉस्ट इंकर नहीं होगा सेव होगा. सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर अस ठीक है. Now maximum external demand for motor is 30,000 unit per year. So that means M का capacity 60,000 होने के बावजूद भी मेरा external demand is only 30,000. So that means division M has a spare capacity of 30,000. Alright. So now अब हम लोग ने रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लिया. अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट बोल रही हूँ सिनारियो अच्छे से पढ़ लिया. अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ए के लिए. सो ए में क्या कर रहा है अभी जो करंट पॉलिसी है जो एक दूसरे से खरीदना है बाहर से नहीं वो अगर चेंज हो जाए तो क्या प्राइस सुइटेबल होगा तो हमको वो चीज़ फिगर आउट करना है एंड लास्ट में हमको रिकमेंडेशन भी देना है. सो व्हाट आई हैव डन मैंने क्या किया है डिवीजन एस के पर्सपेक्टिव से कौन सा प्राइस होगा वो डिस्कस किया. डिवीजन एम के पर्सपेक्टिव से कौन सा ट्रांसफर प्राइस बेस्ट होगा और फिर मैंने ग्रुप के पर्सपेक्टिव से क्या बेस्ट होगा वो डिस्कस किया एंड एट द लास्ट मैंने कंक्लूजन में अपना रिकमेंडेशन लिख दिया. सो आई विल शो यू हाउ आई हैव डन दिस. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो.
So I hope my screen is visible from buying division perspective. Let me mention the heading. ठीक है, कौन सा पार्ट है? रिक्वायरमेंट ए है. It is very important to mention the which part and requirement you are answering, right? सो डिवीजन बाइंग डिवीजन कौन है? डिवीजन एस है. सो डिवीजन एस के पर्सपेक्टिव से एज आई सेड इसके लिए बेस्ट ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? और इफ यू वांट टू डिस्कस व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट डिवीजन एस वांट टू डिवीजन एस विल बी विलिंग टू पे, इट्स 800. क्योंकि ये बाहर में भी उतना में 800 में मिल रहा है, अंदर भी चाहेगा 800 में मिल जाए और इससे कम में. सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया है. द बाइंग डिवीजन एस विल बी रेडी टू पे द ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम विच इज द करेंट प्राइस इन द मार्केट. या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द बाइंग डिवीजन एस विल बी रेडी टू पे द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, उल्टा हो गया मेरा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विच इज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोटर इन द मार्केट. In the market, so that is 800 each. So division M might be expecting this is the valid price. S नहीं S, M नहीं S. All right. So ये हमारा हो गया बाइंग डिवीजन के पर्सपेक्टिव से. Now let's move toward the from the perspective of division M, which is a selling division. ठीक है. सो डिवीजन एम की बात किया जाए, द सेलिंग डिवीजन एम वुड चार्ज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बाय एडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज द लॉस कंट्रीब्यूशन above the relevant cost to transfer. The relevant cost is 30 less than normal. Let me arrange this sentence. Okay, so now I have arranged the sentence. So minimum transfer price for the selling division for selling division M is equals to relevant variable cost plus opportunity cost. So as we have studied earlier, so for internal transfer, so हमारा relevant variable cost क्या हो जाएगा? It's 770. But अगर हम लोग internally transfer कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 30 सेव हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट नहीं इंकर होगा, पैकेजिंग का कॉस्ट नहीं इंकर होगा, तो वहाँ पे हमारा 30 सेव हो जाएगा. सो दैट मीन्स रिलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट विल बी 770 माइनस 30. रिमेंबर, अगर आपका कॉस्ट सेव हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग के रिलेटेड, इन दैट केस हम लोग 30 माइनस करेंगे. सो यहाँ पे भी मैंने वही किया है. सो मेरा रिलेवेंट कॉस्ट विल बी 740. इसको कैसे कैलकुलेट किया है? 770 माइनस 30. ठीक है, which is saving on the distribution and packaging cost. So अब ये तो हमारा relevant cost हो गया. ना opportunity cost क्या होगा? opportunity cost means lost contribution. अगर हम लोग बाहर नहीं बेचे तो उसमें तो contribution lost होगा ना, वो figure out करना पड़ेगा. So अगर हम मान लो कि internally बेच रहे हैं तो बाहर कितना contribution earn करे थे? It's 850 minus 770, that gives the 80. So 80 contribution अब हम लोग earn नहीं करेंगे. So this one is a lost contribution. सो ये कब आएगा? जब कैपेसिटी फुल होगा और इंटरनल यूनिट उसको रिप्लेस करेगा एक्सटर्नल को, उस केस में ये कंट्रीब्यूशन आएगा. नाउ कमिंग टू आवर मतलब डिवीजन एम में जिसका कैपेसिटी इज 60,000 बट एक्सटर्नल डिमांड क्या है? 30,000 ओनली. सो दैट मीन्स 30,000 का हमारा स्पेयर कैपेसिटी है और उस स्पेयर कैपेसिटी में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे सॉरी कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा. सो यहाँ पे हमारा फॉर दिस स्पेयर 30,000 यूनिट हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? रिलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0 इन दिस केस. सो रिलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा? 740 ईच.
ठीक है। सो एनी एडिशनल इंटरनल यूनिट बियॉन्ड 30,000, जैसे कि अब इसको चाहिए 35,000 ना, सो बाकी का 5,000 तो उसको एक्सटर्नल डिमांड काट के देना होगा, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस की बात आएगी। सो उस केस में हमारा ट्रांसफर प्राइस विल बी 740 प्लस 80, दैट गिव अस द इन टोटल 820, ठीक है। सो विच इज़ अबव द हमारा जो एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस था 8 से डिवीज़न बाइंग डिवीज़न एस के केस में उससे ज़्यादा है, ठीक है। सो ये अब हम लोग यहाँ पे इसको कट करती हूँ, यहाँ पे हम लोग ने बस सजेस्ट किया है, ठीक है। सजेस्ट इन द सेंस ये सेलिंग डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यूनिट के लिए इतना सेलिंग प्राइस एंड इतना यूनिट के लिए इतना सेलिंग प्राइस। ऑलराइट, अब हम लोग ग्रुप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ ग्रुप के पर्सपेक्टिव से व्हाट आई हैव रिटन, जैसे कि ग्रुप के पर्सपेक्टिव से हम लोग इंडिविजुअल डिवीजन का प्रॉफिट नहीं देखेंगे, रैदर देन कंपनी ओवरऑल का प्रॉफिट देखेंगे मैक्सिमाइज होना, ठीक है। सो फ्रॉम द ग्रुप पर्सपेक्टिव द की ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रैदर देन द प्रॉफिट ऑफ द ईच इंडिविजुअल डिवीजन, ठीक है। सो फॉर एवरी मोटर सोल्ड एक्सटर्नली, अगर मान लो कि मैं बाहर बेच रहा हूँ तो एम डिवीज़न कितना कंट्रीब्यूशन ऑन कर रहा है, 80। बट अगर ये 80 कैसे कैलकुलेट हुआ, इट्स 850 माइनस 770, इससे 80 कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। बट अगर डिवीज़न एस मान लो कि इंटरनल ना खरीद के आई मीन बाहर 8 से में ख़रीद रहा है, सो उस केस में क्या बोलता है, अगर मान लो कि इंटरनल वाले 740 में दे रहे हैं 770 माइनस 30 करके, सो उस केस में उसका कॉस्ट कितना बच रहा है, इट्स 60। सो व्हाट आई मीन टू से, उसको बाहर खरीदने पे 800 पड़ रहा है और इंटरनल डिवीज़न एम उसको कितना में देगा, 770 माइनस 30 करके, दैट इज़ 740 में। बाहर से तो 60 रुपया सस्ता पड़ रहा है ना, $60। सो यहाँ पे हमारा सेविंग क्या होगा, 60 पर मोटर। बट देखा जाए तो 80 कंट्रीब्यूशन इज़ मोर एज कम्पेयर टू द 60। सो इसका मतलब एज अ ओवरऑल ग्रुप का अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो डिवीज़न एम को पहले बाहर बेचना होगा रैदर देन द इंटरनली, ठीक है। ये ग्रुप के पर्सपेक्टिव से हो गया। सो हम लोग ने 3 चीज़ डिस्कस किया, फ्रॉम द बाइंग डिवीज़न एस के पर्सपेक्टिव से, सेलिंग डिवीज़न एम के पर्सपेक्टिव से एंड ग्रुप के पर्सपेक्टिव से। नाउ इट्स टाइम टू प्रोवाइड आवर रिकमेंडेशन। सो रिकमेंडेशन के लिए मैंने लिखा कि कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन इट इज़ एडवाइज दैट 5,000 यूनिट्स शुड बी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर एट 800। क्यों? क्योंकि ये अगर 5,000 डिवीज़न एम एक्सटर्नल सेल्स काट के दे रहा है, उस केस में डिवीज़न एस को कॉस्ट कितना पड़ेगा, 820। रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये रहा, ठीक है। सो 5,000 को उसको बाहर से खरीदने में ही भलाई है, एंड बाकी का जो रेस्ट 30,000 जो स्पेयर कैपेसिटी भी है एम का, उस केस में डिवीज़न एस को कॉस्ट कितना पड़ेगा, 740। तो इसमें ट्रांसफ़र होना चाहिए। सो मैंने यही लिखा है यहाँ पे एज ए कंक्लूजन। सो दैट्स फॉर द पार्ट ए। नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट बी। सो पार्ट बी मैंने यहाँ पे कर लिया है। सो पार्ट बी के फर्स्ट में दे आर सिंपली आस्किंग टू कैलकुलेट द ROI। सो ROI का अगर याद होगा फॉर्मूला, इट्स कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रोलेबल एसेट्स, ठीक है। सो हमारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिया है बट कंट्रोलेबल एसेट्स दिया है विच इज़ द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो मैंने वो चीज़ यहाँ पे रख लिया। अब कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल्स जनरेटेड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स, ठीक है। सो वी नो द मार्जिन, वी नो द सेल्स, वी कैन कैलकुलेट द कंट्रोलेबल प्रॉफिट विच इज़ योर 28% इंटू 44,600 जो आपको देगा 124,888 एंड डिवीजन एम के केस में 21,800 इंटू 33%। ऑलराइट, सो ये करने पे हमारा प्रॉफिट आएगा 7194। नाउ वी विल सिंपली डिवाइड दिस टू एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो मेरा ROI फॉर डिवीजन एस इज 15.08% एंड फॉर M for M it's 17.72%.
ठीक है, यहाँ पे एडवाइस कुछ नहीं मांगा, दे सिंपली सेड टू कैलकुलेट, सो वी हैव डन द कैलकुलेशन पार्ट। नाउ पार्ट 2, बी का 2 में दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट RI, रेसिडुअल इनकम। सो रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है हमारा, जस्ट सेकेंड। सो RI का फॉर्मूला हमारा देखा जाए तो इट्स कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस आपका जो एसेट है कंट्रोलेबल, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इन आवर केस इज 12% इफ रिमेंबर द क्वेश्चन सिनारियो। तो यहाँ पे मैं 0.12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो दिस विल गिव मी द प्रॉफिट RI ऑफ 2552 एंड सिमिलरली फॉर डिवीजन M 2322। ठीक है, सो वैसे करके मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, यू कैन सी। तो अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है, नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग। ओके, सो आपको अब यहाँ पे पार्ट 3 में कह रहा है कमेंट ऑन द रिजल्ट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द मैनेजर व्यूज अबाउट द रेसिडुअल इनकम। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमको कमेंट करना है जो मैनेजर, न्यू मैनेजर का जो कंसर्न था उसको लेकर। ऑलराइट, सो यू कैन सी माई एक्सप्लेनेशन पार्ट फॉर द पार्ट B3 रिक्वायरमेंट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ डिसीजन अबाउट टू मेक ए न्यू इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन ROI देन डिवीजन S विल रिजेक्ट द प्रपोजल वेयर एज डिवीजन एंड विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्यों? क्योंकि डिवीजन एक्स का ROI कितना है 15%, पर करंट ROI 16% है। सो इससे बिलो हुआ तो हमारा ये करंट ROI डायल्यूट हो जाएगा, इसलिए डिवीजन एस रिजेक्ट करेगा, बट डिवीजन एम तो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये 16% से ज़्यादा है। ऑलराइट, सो अब गोइंग फर्दर विथ इन्वेस्टमेंट विल गियर अप द मोर करंट वन, ये उसी का बात है जो मैंने अभी बोला। सो अगर हम लोग RI के बेसिस में लेते हैं दोनों डिवीजन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम लोग RI के बेसिस में डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट। बट यहाँ पे दोनों के केस में पॉजिटिव आया तो दोनों डिवीजन एक्सेप्ट करेगी प्रोजेक्ट को। सो यही मैनेजर समझा रहा है कि ये हमारा गोल कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग है, ROI नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर अपना सोचता है, नॉट फॉर द कंपनी एज ए होल। ठीक है, सो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इट्स फॉर द 4 मार्क्स। सो दिस इज़ फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एड्रेस योर क्वेरीज। अगर और कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो मैं सॉल्व करूँ, आई एम हैप्पी टू सॉल्व दैट एज वेल। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो बने रहिए, कल के लिए कल नया क्वेश्चन लेके एक वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।